Light is incident from air to glass surface. When it is incident on the prism, it bends towards the normal, and due to which it bends at an angle of r1. At the first surface, the angle of deviation that has been caused, this angle of deviation is I1 minus r1. Similarly, from the second surface, when it goes out, the angle of deviation is I2 minus r2. Delta is this exterior angle. Exterior angle is equal to sum of two interior angles. Sum of two interior angles. So angle of deviation which is produced in the path of light. Exterior angle is equal to sum of two opposite interior angles, I1 minus R1 plus I2 minus R2. So I think yesterday your school was open. School opened yesterday, right? तो गया था स्कूल ऑफलाइन कल? नो सर, हमारा तो ऑनलाइन है। ऑफलाइन अभी स्टार्ट नहीं हुआ? हमारा स्कूल खोलने की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई। अच्छा, मेरे भी आई थिंक स्कॉटिश हाई हो गया है। कल कुछ बच्चे वहां गए भी थे। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला एंगल ऑफ डेविएशन का, I1 माइनस I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, एंड देन वी यूज सम geometry concept like this is PQRS. So in this quadrilateral PQRS, quadrilateral में सारे एंगल का समेशन होता है 360 डिग्री. This angle is A plus here this angle become 90 degree क्योंकि ये normal है, plus angle at R, whatever it is, angle QRS, plus the fourth angle is again 90 degree, it is a normal. Sum of all the four angles will be 360 degree. From here we get QRS as 360 minus 180, 180 minus A. So here this angle is 180 minus A. ये तो हो गया इस quadrilateral में. Now if we consider the triangle QRS, in any triangle the sum of all the three interior angles is equal to 180 degree. In QRS, R1 plus R2 plus 180 minus A is equal to 180. The sum of all the three angles in any triangle is 180 degree. 180 cancel हो जाएगा. R1 plus R2 will be equal to A. So this is one standard result in the prism. Angle of refraction at the first surface plus angle of refraction at the second surface, that summation is equal to A. And so if you substitute that R1 plus R2 here, the angle of deviation produced by the light, by the prism in the path of light, is I1 plus I2 minus A. Angle of deviation produced in the path of light by a prism in the monochromatic light is I1 plus I2 minus A. I1 is angle of incidence, I2 is angle of emergence. अगर लाइट I1 पे जाती है और I2 पे बाहर निकलती है, and the angle of prism is A, the angle of deviation is I1 plus I2 minus A. Correct? Yes. Especially Tejasvi and Kabir. ये डायग्राम में कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क इफ anything not clear, because this diagram is very important and there are many questions that we will do on this.
समझ में आ गया। समझ में आ गया? ओके कबीर, Yes, sir, understood. understood? So this is very important for the exam point of view. ये diagram and this अब इसमें by the path of reversibility we can do that. If light is going from left side at an angle of I1, it will come out at an angle I2. Angle of incidence is I1, then angle of emergence is I2. अगर suppose ये light right side से enter करे, exactly same prism but in opposite direction, फिर क्या होगा? Angle of incidence will be I2 and angle of emergence will be I1. So इसका मतलब अगर I1 पे इंसिडेंट होगी तो I2 पे बाहर निकलेगी, I2 पे इंसिडेंट होगी तो I1 पे बाहर निकलेगी. So I1 plus I2 की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम हो जाएगी. That I1 plus I2, whether it is incident at I1 or it is incident at I2, it will be same. So इसका लॉजिक क्या हुआ, मतलब इससे हमने क्या कंक्लूड कर सकते हैं? The conclusion that we can do here is for two different angle of incidences, एक I1 और एक I2, दोनों के लिए same angle of deviation मिलेगा. If angle of incidence, when angle of incidence is I1, the angle of emergence will be I2. By using the reversibility of light, if light retraces both coming from opposite direction, if light ray is incident at an angle of I2, it will emerge at I1. If light ray is incident at I2, it will emerge at I1. इससे फायदा क्या हुआ? What is the conclusion? I1 plus I2 की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी. सो चाहे एंगल इंसिडेंस I1 पे हो या I2 पे हो, दिस वैल्यू इज सेम और A anyways constant. So angle of deviation will be same for two different angle of incidence I1 and angle of incidence I2. ये समझ में आया क्या? Is that clear? Same angle of deviation मिलेगा हमें for two different angle of incidences. So अगर हम angle of deviation versus angle of incidence का ग्राफ बनाते हैं. Angle of deviation is on the y-axis versus angle of incidence. So for the two different angle of incidences, we will get the same angle of deviation. I1 पे आएगा तो I2 पे बाहर निकलेगा, I2 पे आएगा तो I1 पे बाहर निकलेगा. Summation I1 plus I2 is same. A anyways is constant. So I1 plus I2 minus A will be same for these two angles. So graph कैसा बनना चाहिए इसका? What should be the shape of the graph? अगर हमें एक वैल्यू दो अलग अलग, if we get same value for two different angles, the possible graph is parabolic graph. पैराबोला में हमें एक ही वैल्यू दो बार मिलती है. For this same y, there are two different x is possible. ऐसे here. This is kind of graph, थोड़ा parabolic type कुछ graph होता है.
for the same angle of deviation, it will correspond to two different angle of incidences. जब एंगल I1 पे इंसिडेंट होगा तो I2 पे बाहर निकलेगा, जब I2 पे इंसिडेंट होगा तो I1 पे बाहर निकलेगा. Summation I1 plus I2 will remain same. Summation I1 plus I2 will remain same, and therefore so हम ये ग्राफ कैसे बना रहे हैं? प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रिज्म लेते हैं, सामने पिंस लगाते हैं और फिर प्रिज्म को धीरे धीरे रोटेट करते जाते हैं. When we rotate the prism, angle of incidence keeps on changing और different angle पर हम angle of deviation measure करते हैं, and then we observe that same angle of incidence deviation is obtained for two different angles, right? ये ग्राफ हमने क्वालिटेटिवली बनाया है, इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है. दिस इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट I1 पे इंसिडेंट तो I2 पे बाहर, I2 पे इंसिडेंट तो I1 पे बाहर, एंड as a result it will be a parabolic kind of graph. But if you see this lowest point, that lowest point corresponds to minimum angle of deviation. This corresponds to the minimum angle of deviation. और इसके लिए क्या कंडीशन होगी कि ये एक ही पॉइंट है, यहाँ पे I1 और I2 या सो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कब मिलेगा हमें? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे. When I1 is equal to I2, I1 is equal to I2 का मतलब क्या हुआ? It will be a perfectly symmetrical path. जैसे पिछला डायग्राम भी कुछ ऐसे ही बना दिया मैंने. It also looks like I1 and I2 are equal. तो जब I1 और I2 इक्वल होंगे, दोनों को हमने ले लिया सपोज I. When I1 and I2 are equal, so when angle of incidence is equal to angle of emergence, then the light suffers minimum deviation. बेटा समझ आ रहा ना ये ग्राफ एंड ग्राफ के बाद ग्राफ का लॉजिक क्या है? इज इट क्लियर? Yes, sir. विक्रमादित्य, Yes, sir. Clear. ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं? हम कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, दोस पॉइंट्स वी ज्वाइन देम. बट यहाँ पर हमने वैसा नहीं किया. हियर द अप्रोच इज एंटायरली डिफरेंट. बाय लॉजिक वी नो I1 पर भी सेम एंगल मिलेगा और एंगल ऑफ डेविएशन, एंड व्हेन इट इज I2 देन आल्सो वी गेट द सेम एंगल ऑफ डेविएशन. So as a result, I1 and I2, I1 and I2 is equal to I, R1 is equal to R2. अगर I1 I2 इक्वल है तो R1 R2 भी इक्वल होंगे. कॉमन सेंस, क्योंकि sin I by sin R is equal to mu. The angle of deviation in the path of light ray passing through prism is minimum. Angle of deviation in the path of incident ray is minimum. मिनिमम डेविएशन का मतलब इसके बाद फिर अगर हम प्रिज्म को रोटेट करेंगे देन इट विल गो फर्दर बियॉन्ड. सो पहले तो एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है एक पॉइंट पे मिनिमम, एंड अगेन इट इज स्टार्टेड.
increasing. मिनिमम डेविएशन को मेजर करके हम किसी भी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं. दैट इज एन एक्सपेरिमेंट. Very nice. So when it is passing through a glass slab, passing through a prism, minimum deviation को use करके हम prism कैलकुलेट करते हैं, prism का refractive index कैलकुलेट करते हैं. That is the concept we use in class 12th also. So minimum angle of deviation is the angle of deviation is found to be minimum when angle of incidence is equal to angle of emergence. आपकी बुक में I और E notation use किया है, मैंने I1 और I2 notation use किया है, but concept is same. Angle of deviation is minimum when angle of incidence is equal to angle of emergence. Is equal to angle of emergence. So minimum angle की वैल्यू हमने I1 और I2 दोनों को ले लिया I. So minimum a deviation angle will become the minimum deviation angle becomes I1 plus I2 minus A, so that becomes 2I minus A, where I, और इस केस में R1 and R2 both will be equal. I1 और I2 equal हो गया and R1 is equal to R2. और दूसरा फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था that R1 plus R2 is equal to A. So 2R is equal to A. R will be equal to A by 2. This is at the minimum deviation angle. मिनिमम डेविएशन एंगल पे R की वैल्यू हो जाती है A by 2 के इक्वल, और मिनिमम एंगल को हम मिनिमम डेविएशन को हम कैलकुलेट कर लेंगे I के टर्म्स. उस ग्राफ को हमें प्लॉट करना होता है. ग्राफ से हमें मिनिमम एंगल कैलकुलेट करना है, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंड बाय यूजिंग दिस मिनिमम डेविएशन एंगल वी कैन फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बेटा ये समझ आ रहा है? अब इसका ग्राफ देखते हैं अगर, तो इसके केस में जो जो लाइन का पाथ होगा इट इज परफेक्टली सिमेट्रिकल, और परफेक्टली सिमेट्रिकल का मतलब इट इज पैरेलल टू द बेस इनसाइड. The path of light ray inside the prism is parallel to the base. The path of light ray is parallel to the base of prism. Parallel to the base of prism inside it. और ये कब होगा? Only when the light is suffering a minimum deviation. So Vihan, Yes, sir. समझ आ रहा है? Yes. You don't have WhatsApp access at the time of class, is it so? Or you don't have mobile phone? That's a wonderful thing. आज का मैसेज नहीं मिला था. Vihan, Yes, sir. I'm asking, I asked something that you don't have access to mobile at the time of class, no? Nice, sir.
अच्छी बात है क्योंकि उससे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, बट क्या करें, दैट इज द ओनली कन्वीनियंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर। सो अगर हमने एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लिया और हमने एंगल ऑफ प्रिज्म पता ही है, जो कि मोस्टली हम इक्विलैटरल प्रिज्म यूज करते हैं, सो ए 60 डिग्री, वी नो ए एंड वी हैव मेजर्ड द वैल्यू ऑफ डेल्टा मिनिमम फ्रॉम द ग्राफ। सो जैसे अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे थे, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस पता पड़ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन ईच सरफेस इज आई, angle of refraction is r. So since we can find I in terms of delta minimum, we can calculate r in terms of angle of prism. So mu will be sin I by sin r. Refractive index of the material of prism we can calculate with this measurement of value of I and r. Refractive index of material of prism. बेटा कबीर ये समझ आ रहा है? कबीर, कबीर, Sorry, sir. Yes, sir. Yes, sir. So मेरा mic थोड़ा चल नहीं रहा था, sir. माइक नहीं, कहीं बाहर ही थे बेटा, तुम गोली दे रहे हो, क्लास ऑन करके कहीं घूमने चले जाते हो हैं? नहीं सर, वो ऑन नहीं हो रहा था. माइक ऑन नहीं हो रहा था? माइक ऑन होने में इतना टाइम लगता है? स्कूल में कर लिया टॉपिक है? स्कूल में क्या चल रहा है अभी सिलेबस कबीर? सर इसी चैप्टर पे बस सर ए एक्सरसाइज पे ही है. ओके, राइट. सो नाउ we will see the factors affecting this angle of deviation. We have done the theory part almost. एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट ये एक्सपो प्रैक्टिकल अभी आपके सिलेबस में नहीं है. सो हम एंगल ऑफ डेविएशन, angle of deviation is I1 plus I2 minus A. So now, on what factors the angle of deviation will depend? Angle of deviation produced by the light, produced by the prism in the path of light will depend upon what factor? Let's first discuss verbally. किस पे depend होना चाहिए? Should it depend upon angle of incidence? I, Jayesh, angle of incidence change करेंगे तो angle of deviation change होगा. Quite obviously हमने पूरा ग्राफ भी बना रखा है आपको. If we are changing angle of incidence, then angle of deviation will change for sure. Correct? Yes, sir. Now, what is the other factor that is going to change? What With are what? the factors that will decide the angle of, that will change the factors affecting the angle of? हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, थोड़ा फॉर्मूले से हम रिलेट करेंगे. Factors affecting the angle of deviation that is produced. Okay. Sir, angle just of prism. Angle of prism, obviously, because delta is I1 plus I2. I1 हो गया, चलो मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. I2 आ गया एंगल ऑफ इमर्जेंस. So first is, it depends upon एंगल ऑफ इंसिडेंस. कैसे डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से? The angle of deviation decreases with increase. The angle of deviation, sorry, first heading is dependence on angle of incidence. Depends on angle of incidence. And how does it depend? वो हमने वैसे ग्राफ में पीछे बना रखा है. The angle of deviation decreases with increase in incidence and then reaches to a minimum value
decreases with increase in angle of incidence reaches to a minimum value and further increases. So हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो continuously decrease ही होता जा रहा है. It will decrease, reaches to a minimum value and then further increase. Fine. So angle of incidence बढ़ाने पे decrease होता है, minimum होने के बाद फिर से increase होने लग जाएगा. Now second जो question था, angle of prism पे depend करेगा, but how it will depend? It will increase or decrease. If we increase the angle of incidence, the angle of deviation will increase or decrease. Okay, so your first paper is 18th. The no, first is maths on 16th. I just checked your work date sheet. Right. 16th is maths, 18th is biology, 23rd is chemistry, and 31st is physics. So physics is the last. Very nice. Yes, boss. I asked something. अगर हम angle of prism बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा angle of deviation? Will it increase or decrease? Sir, it should decrease, I think. थोड़ा सा लोचा है और हम उसको प्रूफ करते हैं कैसे. अभी देखने में तो लग रहा है a बढ़ेगा तो डिक्रीज होना चाहिए, राइट? You can see clearly from this I1 plus I2 minus a को माइनस कर रहे हैं. अगर हम a बढ़ाते जाएंगे तो डेल्टा डिक्रीज होना चाहिए, but delta will not decrease. Delta will increase. कैसे? इसको अभी हम प्रूव करते हैं. Let's with some approximation will prove. This second is dependence on angle of prism. Dependence on angle of prism. So when the angle of prism increases, actually the angle of deviation will increase. कैसे हम उसको थोड़ा सा इस वाले फॉर्मूले से डिराइव करते हैं, और ये आपके उसमें स्टार करके नीचे लिखा हुआ है. So it's not that something which is very beyond your book. किसी भी स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को थीटा लिख लेते हैं. ये हमने यूज की है अप्रोक्सीमेशन. तो जैसे यहाँ पे है साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2. बोलोगे कि ये एंगल छोटा तो नहीं है, बट वेरिएशन सिमिलर रहेगा. हम छोटे एंगल के लिए ड्राइव कर लेते हैं, बड़े एंगल में वेरिएशन सिमिलर रहेगा. सिमिलर रहेगा मतलब कि a के साथ डिपेंडेंसी सेम रहेगी. फॉर्मूला विल स्लाइटली चेंज. सो फॉर थिन प्रिज्म जिनका एंगल ऑफ प्रिज्म थोड़ा छोटा होगा, उनके लिए हम म्यू को लिख सकते हैं a प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइडेड बाई a बाई q2 गॉन. म्यू इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m बाई a. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. a प्लस डेल्टा m इज म्यू a and delta m is mu minus 1 times. Yes. So उस फॉर्मूले में क्या था? a माइनस में था. अभी ये जो फॉर्मूला आ गया एंगल ऑफ डिवीजन का, इसमें क्या आया? डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल.
बेटा ये कुछ समझ में आया क्या? क्या हुआ, कुछ ये जादू से माइनस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया? थोड़ी सी मैथ्स है, हमने एक मैथ्स का अप्रोक्सीमेशन यूज कर लिया। जब थीटा बहुत छोटा एंगल होता है तो साइन थीटा को थीटा करते हैं। यहाँ पे साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू और साइन ए बाई टू विल बिकम a plus delta m by 2 and a by 2. As a result, when you solve, you can see that delta is coming out proportional to a. It is delta m, but delta m और delta दोनों का relation similar ही होगा. Got it? नहीं सर, नहीं समझ आया मेरे को ये। कैसे साइन थीटा को सिर्फ थीटा ले रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ चलो आया। प्रूफ करते, वेट प्रूफ करते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है। मैथ हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री थोड़ी है, केमिस्ट्री में रटना होता है। बेटा साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? अबे अब ये तो पता ही है। साइन 30 कितना होता है बेटा? सर हाफ। सर साइन 30 हाफ। हाँ, इतनी देर में गूगल किया, करना पड़ गया क्या? 30 डिग्री, डिग्री इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट। आपने 9th में पढ़ा था या शायद स्किप हो गया था लास्ट ईयर, डोंट नो। एंगल के लिए जो यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एंगल इज व्हाट? एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। सुना है? रेडियन सुना है? नहीं सुना सर कभी भी। एक बार कभी गूगल पे पढ़ा था मैंने। गूगल देवता जिंदाबाद। स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं हम जब भी किसी मेजरमेंट के लिए। जैसे लेंथ के लिए स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर। ये 9th के शुरू में था, बट 9th में ऑनलाइन में भगवान भरोसे जो भी हुआ है, राम जाने। तो 9th में एक पहला चैप्टर है ना मेजरमेंट वाला, कुछ कुछ पढ़ा था वो। सर जहां तक मुझे याद है मेजरमेंट कट गया था। कट तो गया था, बुक से नहीं कटा था, बुक में था, पढ़ सकते थे, मैंने पढ़ाया था, बट ठीक है। एनीवेज, ये थोड़ा सा माइंडसेट हमें आगे दिक्कत करता है। ये कट गया है अभी, डोंट थिंक शॉर्ट टर्म। पढ़ना सब कुछ है, बट व्हेन यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम देन यू मे लीव दैट क्वेश्चन। वो लॉन्ग रन में प्रॉब्लम करेगा। वैसे रेडियन के और ये सभी क्वेश्चन मैथ्स में हमें बहुत सारे करने होते हैं, फिर इसमें भी करने होते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट एसआई यूनिट बोलते हैं, और एसआई यूनिट जैसे लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड। ऐसे एंगल के लिए जो हम डिग्री यूज करते हैं, दैट डिग्री इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट होती है रेडियन। और रेडियन और डिग्री का रिलेशन होता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये पाई वाई अपना वाला है, 3.14 वाला। सो 1 डिग्री को हम पाई बाई 180 रेडियन लिखते हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ प्रूफ, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैथ्स है। दिस इज द प्रूफ दैट साइन थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू थीटा। और हम इसको कर सकते हैं सर ये बेटा। सर हम कहाँ पर हैं? मैं डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ बेटे, हम कहाँ पर हैं? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हम गुड़गांव में हैं। मैं अपने घर को, अपने घर को। सर वेरी गुड। अभी हाँ ठीक, समझ गया मैं। कहाँ पे है हम?
हम है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन. ओके सर. तो ये बेटा, तो इसमें पहला पॉइंट था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होगा, मिनिमम होगा, और फिर इंक्रीज होने लग जाएगा. सेकेंड जो पॉइंट था जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, जो देखने में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था फॉर्मूले से, एंगल ऑफ प्रिज्म पे कैसे डिपेंड करता है. इस फॉर्मूले से अगर कैलकुलेट करोगे तो लगेगा कि माइनस ए बढ़ाएंगे, और ए बढ़ाएंगे तो डेल्टा डिक्रीज हो जाएगा, राइट. सो डेल्टा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब, बट एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म को बढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन एक्चुअली में बढ़ता है, और उसका हमने यहाँ पे प्रूफ किया. प्रूफ कैसे किया वो पहले समझ लेते हैं. प्रूफ में एक अप्रोक्सीमेशन है कि छोटे एंगल के लिए साइन थीटा को थीटा लिख लेते हैं. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले में साइन ए प्लस डेल्टा एम बन जाएगा ए प्लस डेल्टा एम की साइन थीटा इज थीटा. साइन ए बाई टू बन जाएगा ए बाई टू, टू टू गॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अब यहाँ पे दिख रहा है दैट डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू ए. एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता है, राइट. ओके सर. अब ये यदि यहाँ पे बात आ रही थी कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये कैसे होता है इसको हमें समझना है. उसके लिए ही मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहा था मैथ्स का, क्योंकि ये 9th में एक चैप्टर में स्टार्टिंग में थोड़ा सा है, बट वो चैप्टर शायद कोविड की भेंट चढ़ गया. इसलिए अभी हम समझ रहे थे कि ये कैसे हो सकता है. साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा. साइन 30 होता है हाफ. हाफ का मतलब 0.5. लेकिन 30 जो है वो डिग्री में है, और डिग्री इज नॉट दी स्टैंडर्ड यूनिट. स्टैंडर्ड यूनिट होती है रेडियन. दिस इज सम एक्स्ट्रा पॉइंट नॉट रिलेटेड विद दिस चैप्टर. 1 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो आता है पाई बाई 180. सो इसका मतलब 30 डिग्री कितना आएगा, 30 डिग्री कितना आएगा, 30 इंटू पाई बाई 180. जयेश, सर 6. पाई बाई 6 ना. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 3.14. ये डिवाइड करो कितना आएगा, 0.52. तो जब आप इस 30 डिग्री को एक्सप्रेस करेंगे रेडियन में, साइन 0.52 की वैल्यू कितनी है, 0.5. दिख रहा है. यस सर. तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल ही होती है, जब थीटा बहुत बड़ा नहीं हो, छोटे एंगल पे 30 डिग्री इज नॉट वेरी स्मॉल, बट स्टिल इट इज इक्वल, ऑलमोस्ट. राइट. सो इसी अप्रोक्सीमेशन को हमने वहां पे यूज किया है, जिसको यहाँ पे प्रूव कर लिया दैट साइन ऑफ 0.5 इज इक्वल टू 0.5. बाय दिस अप्रोक्सीमेशन हमें ये रिजल्ट मिल गया दैट डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू ए. एंगल ऑफ प्रिज्म अगर हम बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज होगा. पहले रिजल्ट से ऐसा लग सकता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होना चाहिए. अगस्त, Yes, sir. अंडरस्टूड. ये जो डेरिवेशन हमने कुछ किया है ये समझ में आ रहा है ना. सर हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन आ रहा है.
ये अज्यूम करना है आपको क्योंकि ये मैथ्स में होता है फैक्ट। साइन थीटा को थीटा लिख लेंगे तो a प्लस डेल्टा एम बाई 2 बन जाएगा a प्लस डेल्टा एम बाई 2। साइन ए बाई सर 2 बन गया। वैसे भी प्रूविंग तो आनी रही ना, क्योंकि हमारे बुक में है नहीं। हाँ ये नहीं आ रहा ना वैसे भी, मतलब पेपर में नहीं आएगा नहीं। क्या होता है भाई, समझना जरूरी है। अगर अगर हम बोले एंगल ऑफ प्रिज्म पढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता है, रटना थोड़ी है। हम हिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे बेटे। why it is increasing with increase in a angle of prism is not clear from this formula। थोड़ा पढ़ने का तरीका चेंज करो। ये आ रहा है, ये कट गया है, ये जुड़ गया है, दैट इज अ वेरी शॉर्ट टाइम अप्रोच। आगे जाके फिर प्रॉब्लम आएगी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब भूल गए, सपोज एग्जाम में लिखना है और भूल गए आप एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, देन यू कैन रिवाइज और रिकॉल दिस फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो साफ साफ दिख रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ गए? यस सर। हाँ, तो थोड़ा ना वो बच्चों वाले मोड से बाहर निकलो। एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एंगल ऑफ प्रिज्म। विद इंक्रीज इन एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। सो सेकंड वाला जो है फैक्टर, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। यस, डिक्रीजेस रीचेस द मिनिमम वैल्यू देन फर्दर इंक्रीजेस। सेकंड था एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है। यस, इट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म, बट हाउ इट डिपेंड्स, it increases, it's not decreasing with a increase in t। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। हमने क्या देखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। जो दूसरा फैक्टर था ए, इस पे डिपेंड करता है। I2 किस पे डिपेंड करेगा, एट विच एंगल द लाइट रेज कमिंग आउट will be decided by what? It will be decided by what? It will depend upon angle of R1 and R2, right? R1 फिर R1 पे R2 डिपेंड करता है और R2 पे I2 डिपेंड करता है। So which means it depends upon the angle of, it depends upon the refractive index। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करने पे R1 चेंज होगा, R1 चेंज होने पे, है ना। या आप ऐसे डायरेक्टली भी देख सकते हो, हमने जो दूसरा फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया है, दिस फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 into A। Again, by using this formula, you can directly see that म्यू बढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा because it is directly proportional to म्यू minus 1। Dependence on refractive index। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा। So angle of deviation increases with increase। Angle of deviation increases with increase in refractive index। refractive index किस पे डिपेंड करता है तेजस्वी? On what factor refractive index depends? तेजस्वी, on what factor? So it depends on speed of light in vacuum to speed of light in another medium in 2 points पे। Right, but in a particular medium it depends upon what? That's a definition, that's correct, yes। The question here wavelength. on, it depends upon Wavelength. it depends upon wavelength, right? So and frequency। It depends upon wavelength क्योंकि frequency तो change नहीं होती ना। It depends upon wavelength और उसका relation कुछ क्या था हमने, Cauchy relation। Yes boss। सर फ्लिंट ग्लास प्रिज्म एंड क्राउन ग्लास प्रिज्म क्या होता है? बेटा बुक को बाद में पढ़ा करो सेल्फ स्टडी के टाइम, ठीक है। जब सेल्फ स्टडी करो तब बुक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ो। अभी फोकस इधर रखोगे तो ज्यादा सही है।
अंडरस्टूड? वरना ना वो समझ में आएगा ना ये समझ में आएगा. सेल्फ स्टडी इज अ सेपरेट टाइम, नॉट ड्यूरिंग द क्लास. दोनों साथ में मत निपटाओ. क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास इज द क्वालिटी ऑफ ग्लास. मटेरियल की कंपोजिशन के हिसाब से फ्लिंट ग्लास इज रिलेटिवली मोर डेंसर, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है. दैट इज फॉर दी, जैसे आपने ग्लास की क्वालिटी देखी हो, बोरोसिल के आते हैं कुछ, कुछ नॉर्मल ग्लास आते हैं, कुछ जो कुल्हड़ चाय पीने जाते हैं उस शॉप पे जो ग्लास होते हैं. तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी ऑफ ग्लास एंड अकॉर्डिंगली उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है. समझ गए? राइट. Yes, sir. हाँ, वेरी गुड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी मीडियम का ज्यादा है, जैसे ग्लास की क्वालिटीज होती हैं, दो अलग अलग क्वालिटी के ग्लास आते हैं और बहुत सारे आते हैं वैसे. टफेंड ग्लास, हार्डन ग्लास. ओके. सो म्यू ऑफ फ्लिंट ग्लास इज बेटर देन म्यू ऑफ क्राउन ग्लास. ये दो नाम है जो बुक में लिखे हुए हैं, बट ऐसे बहुत सारे ग्लास की अलग अलग क्वालिटी आती है. बोरोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट, है ना. जैसे बोरोसिलिकेट का ही शॉर्ट फॉर्म होता है बोरोसिल. बोरोसिल के कुछ ग्लासेस आते हैं, कुछ यूटेंसिल्स आते हैं विच इज रिलेटिवली ऑफ बेटर क्वालिटी. एक टफेंड ग्लास होता है, इसमें बीच में ग्लास वूल लगा देते हैं जो गिरने पर भी नहीं टूटते हैं. राइट. वेरी नाइस. ठीक है. mu of flint is greater than mu of crown, so angle of deviation increases with increase in refractive index. ये तो हो गया जो हमने मीडियम में बदल दी. और अगर हम किसी सेम मीडियम में सपोज फ्लिंट ग्लास में लाइट का कलर चेंज कर दें, इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ और कलर ऑफ द लाइट. डिपेंडेंस ऑन वेवलेंथ और कलर ऑफ लाइट. डिपेंडेंस ऑन कलर. कलर का मतलब हो गया बेसिकली क्या चेंज हो रहा है, वेवलेंथ चेंज हो रही है, वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो थोड़ा ना एक तो तरीका रटने वाला होता है, बट रटने वाला तरीका आपको आगे नुकसान करेगा, इसलिए बेटर है यू शुड लिंक दिस विद अ फॉर्मूला. जैसे एक कॉचीज फॉर्मूला. कॉचीज फॉर्मूला इज म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर. यानी जिस कलर के लिए लैम्डा कम होगा, वेवलेंथ कम होगी, उस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा. जिस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस कलर में एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा. करेक्ट. सो मिस्टर श्रेय, out of all these 7 colors in white light, refractive index सबसे ज्यादा किसका होता है? Which color has maximum refractive index? V. हाँ Sir, V. हाँ, V for violet, है ना. वायलेट में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए सबसे ज्यादा डेविएशन होगा. और ये सारे फॉर्मूले आप, सारे रिजल्ट जो है आप उस फॉर्मूले से जो भी हमने डिराइव किया है, म्यू माइनस 1 इंटू ए, दो इट इज अप्लीकेबल फॉर शॉर्टर प्रिज्म, थिन प्रिज्म, बड़े प्रिज्म में भी कुछ ऐसा रिलेशन होगा बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल.
सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है इसलिए एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ जाएगा, सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन विल इंक्रीज. So angle of deviation increases with increase in wavelength of light. Yes, angle of prism, sorry, angle of deviation is maximum for violet color. So अब suppose अगर हम white light pass करते हैं, maximum for violet color and least for red color. Because mu of violet is greater than mu of indigo, that is greater than mu of blue, and that is minimum for red. Same logic, delta में भी हो जाएगा. So angle of deviation for violet color, angle of deviation for violet is greater than angle of deviation for indigo. Is greater than delta of red. इसका इम्पैक्ट क्या होगा जब भी हम व्हाइट लाइट को पास करेंगे? The result of this is, suppose if white light is passed, white light splits into the 7 color with most deviation in violet color. ध्यान, Yes, sir. व्हाइट लाइट में सबसे नीचे कौन सा कलर मिलेगा इधर? Sir, Red. violet. Which one will be? Violet सबसे नीचे मिलेगा. Violet सबसे नीचे होगा. Okay. And then indigo and blue is almost same. सबसे Then ऊपर red होगा. सबसे ऊपर रेड होगा. और इस फिनोमेना को हम कुछ बोलते हैं, दिस फिनोमेना ऑफ Dispersion. splitting of light is called dispersion, right? Yellow, then orange, and least deviation is in red. So we will get all these 7 colors split at a different angle, and this is called spectrum. Spectrum का मतलब होता है orderly arrangement. So this is called visible light spectrum, and this phenomena of splitting of white light into its constituent color is called dispersion of light. Very nice. So इसको आप heading डाल के लिख सकते हो, dispersion of light. ये लास्ट वाले पॉइंट से एसोसिएटेड है, क्योंकि हमने जब अलग अलग कलर की लाइट पास की अलग अलग कलर के लिए, it has different angle of deviation. From the incident, maximum deviation is of violet. Delta of violet, maximum deviation color, and red has minimum. इसमें जो मीन कलर होता है, मीन कलर मतलब अगर हम केवल एक ही कलर की लाइट लेना चाहें विजिबल लाइट में, लाइट को हम काइंड ऑफ येलोइश मान लेते हैं, एंड वी से दैट येलो कलर इज द मीन कलर. सो बेस की तरफ हमेशा वायलेट आएगा और ऊपर की तरफ रेड. न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था. न्यूटन ने क्या बोला, अगर हम इसके सामने एक और प्रिज्म रख देते हैं विच इज एग्जैक्टली अपोजिट, इन्वर्ट करके अगर हम एक दूसरा प्रिज्म रख देते हैं सामने, then what happens is both of them will give again white light, because एक से जितना ये डाइवर्ज हुआ है, डेविएट हुआ है क्लॉकवाइज, दूसरे से उतना ही एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंड इट विल दूसरे से उतना ही एंटी क्लॉकवाइज होगा, और ये फिर से व्हाइट लाइट गोज इन, और राइट साइड में ये व्हाइट लाइट के फॉर्म में ही बाहर निकले.
Right, so dispersion of light is in the white light or sunlight when the same. So there's a Newton experiment, by the way. Newton did experiment that if suppose we have one prism and another identical prism, but if we invert this, so if suppose we have one prism that we put like this and the another prism is inverted and two prisms side by side, then the first will cause some deviation in clockwise direction, maybe towards its base. The another will do in its own direction of base, because when white light passes through a prism, it bends towards the base. So there it will be divided into 7 colors. मतलब ठीक है, भावनाएं समझ लेना. All 7 color I will not be able to represent all the time. Then the other prism will cause the again other prism will cause towards its base. All of those light rays will again converge and will form one single light ray only. अब जो यहाँ से light बाहर निकलेगी, that will be coming out as a white light only. Say white goes in, the white comes out. Dispersion. अंदर ऐसे कपड़े में Yes. कुछ पूछा शायद किसी ने. कुछ कह रहे थे बेटा, आवाज नहीं है, फिर से बोलना. सर वो मेरा माइक ऑन रह गया था, सॉरी आई वाज टास्किंग. सर वो जब बाहर निकली लाइट रे तो वो वापस से रिफ्रैक्ट नहीं हुई. नहीं, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल भी होगी. This will be like parallel also, parallel to the incident. ये आइडेंटिकल प्रिज्म है ना, तो पहले से जितना क्लॉकवाइज दूसरे से उतना एंटी क्लॉकवाइज बाहर निकल रहा है, पैरेलल हो गई. If it goes in white, it will come out white. Two identical are prism placed as shown. The emergent light is emergent light ray is sorry for the disturbance. Emergent ray is parallel to the incident ray and it will not have any dispersion. बट सर दोनों प्रिज्म के बीच में रिफ्रैक्शन क्यों होगा, बिकॉज़ वो तो सेम मटेरियल है ना. ये प्रिज्म में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ से 7 में डिवाइड हो गई थी. All 7 colors will incident and those will converge. Second prism पे there are total 7 different color lines are incident. ओके. Incident ray, emergent ray is parallel to incident ray and it will not have dispersion. The emergent ray will be white only. Right. But अगर ये दोनों identical नहीं होंगे तब थोड़ा सा कहानी हो सकती है. Then it will be slightly deviated and then deviation caused will be sum of deviation caused by these two different things. So now exercise number 4B. So there are some good example questions are there.
All those examples you have to solve, you have to read. Next class we will discuss. And numericals, some questions we are doing right now, and rest we will do tomorrow. Exercise 4B, question number 30. It is on page number 87 in my book. Which page, sir? Page number 87, if you have the book. If you do not have, then I will read the question for you. Exercise 4B from Selena book. बाय द वे सर, क्या मेरा स्पीड लैब्स का अकाउंट बन गया? अगस्त यस सर। स्पीड लैब का अकाउंट नहीं बना अभी आप? नॉट येट, कुछ मिला नहीं है। ओके, एक बार सृष्टि मैम को मैसेज कर देना, वो मैं उनसे चेक करवा लेता हूँ। ओके, आई थिंक मेल तो हमने कर दी थी स्पीड लैब से, बट विल चेक अभी अपडेट आया कि नहीं। Light ray of yellow color is incident on an equilateral glass prism at angle of incidence. This is the question number 13, page number 87. A yellow light color is incident on an equilateral glass prism at an angle of incidence equal to 48. So I1 is 48. On the first surface, it is incident at 48. And it suffers the minimum deviation by an angle of 36. Question is, what is the angle of emergence? So first formula tha delta minimum is 2 times I1. Sorry. अगर ये मिनिमम डेविएशन है तो जितने पे एंगल जा रही है लाइट उतने पे ही बाहर निकलेगी। I1 is equal to I2. Second question is, if angle of incidence is changed to 30 degree, then what will be the angle of incidence? Then what will be the angle of emergence? And accordingly, so then we'll use this formula. If angle of incidence is changed to 30 degree or 60 degree, 48 पे minimum है। अब अगर हम angle of incidence को 30 करें या 60 करें, what will happen to the angle of deviation? It will be increasing more than 36 or less than 36. So because अगर ये 48 पे already minimum है, 48 से कम करोगे 30 डिग्री तो भी increase होगा, 48 से आगे जाएंगे 60 डिग्री तो भी increase होगा, because that was the minimum. So in both the cases, it is going to be greater than 36. Angle of deviation will be more than 36 for both the cases of 30 degree and 60 degree. Okay, Crown glass and flint glass, fine. Numerical, बस छोटे से दो numerical है इसमें. Question number 19 on page number 88 is exactly the same that we did. Complete and the diagram. One is two identical prism, but second one is inverted with respect to first. Multiple choice question: in reflection of light through a prism, light ray suffers refraction. Numerical first is a ray of light is incident at angle of incidence 48 on a prism of refracting angle 60 degrees, suffers minimum deviation. Calculate the angle of deviation. So now numerical का first question angle of incidence है और minimum deviation angle निकालना है. Minimum के लिए it is 2i minus a. I is 48 and angle of prism is 60 degrees. What should be the angle of incidence for a ray of light which suffers minimum deviation? What will be the angle of incidence? So I को हम यहाँ से लिख लेंगे a plus delta m by 2.
A is given 60 degree, delta M is 36 degree. ये उल्ट पहले पिछले वाले का अपोजिट हो जाएगा. This will be 48 degree. So both the questions are more or less same. रीडिंग दोनों की सेम है, वैल्यूज दोनों की सेम. एक्सरसाइज 4A 4B मैंने एग्जांपल्स दिए हैं आपको होमवर्क में. सारे एग्जांपल्स आपको होमवर्क में करने हैं. आई थिंक वी डोंट हैव टाइम फॉर दी वर्कशीट. कोई बात नहीं, इस चैप्टर की वर्कशीट हम स्टार्ट करेंगे टुमारो. तो जो स्टार्टिंग पोर्शन हमने किया था रिफ्रैक्शन वाला पार्ट, स्नेल्स लॉ एंड ऑल, उसको रिवाइज कर लेना. कल टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल बी डूइंग दी वर्कशीट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. Tomorrow probably the same usual time जो हमारा time होता है, but if there will be any change I will let you know. I have to go for some important work, that's why I switched the time. ठीक है, चलो, okay then, bye bye. Thank you, sir. Bye. Thank you, हाँ sir. बेटा, Thank you, sir. Bye. bye bye. All examples of 4B and the revision of his notes that you have to do. Okay.